Coming to the next question, question number 19. Let's read its statement. 200 logs are staked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. देखो total 300 logs है. Logs means we have the wooden logs. सबसे पहले वाली रो में टोटल 200 लॉग्स को पाइलअप किया है. सबसे नीचे वाली रो में कितने लॉग्स हैं? 20. नेक्स्ट रो में कितने हैं? 19. नेक्स्ट रो में कितने हैं? 18 एंड सो ऑन. इस तरह से करते हुए टोटल कितने लॉग्स को पाइलअप किया है? 200 लॉग्स को पाइलअप किया है. इन हाउ मैनी रोज मीन्स क्या निकालना है? एन निकालना है. आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी इन हाउ मैनी लॉग्स in how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row. इसका मतलब जो हमें क्या निकालना है, एक तो n की वैल्यू निकालनी है एंड सेकेंडली वी आर टू फाइंड द nth टर्म. ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली रो में मतलब जो nth रो है उसमें कितने वुडन लॉग्स है. दिस इज टू बी कैलकुलेटेड. सो व्हाट इज गिवन? द गिवन AP is 20, 19, 18 and so on. What is Sn given? Sn is equal to 200. Sum of n terms is 200. What is A given? It is 20. D will be 19 minus 20 is equal to minus 1. So let's put the formula. Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. 200 is equal to n by 2 into 2 into 20 plus n minus 1 into D की वैल्यू क्या है? माइनस 1. एंड n is to be calculated. 200 is equal to n by 2 into 40 minus n plus 1. This 2 gets multiplied on the other side. It becomes 400 is equal to n into 41 minus n. So 400 is equal to 41 minus n and it becomes a quadratic equation. जब भी Sn में n की टर्म्स में इक्वेशन आती है ना, ये हमेशा क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. और an हमेशा क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन. और n जो Sn होता है वो क्या होता है? हमेशा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है. सो इट इज़ n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइजिंग n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0. n minus 25 minus 16 and minus 25. So either n can be 25 or n can be 16. अब दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या करते हैं? nth टर्म निकाल के देखते हैं दोनों में से n कौन सा वेरीफाई होता है. Suppose we put n is equal to 25. We find A25. It is equal to A plus 24D. A25 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ये था कि जो nth रो है, सबसे ऊपर वाली रो है, उसमें कितने वुडन लॉग्स हैं. निकालते हैं कितने लॉग्स हैं. 20. जैसे फर्स्ट रो में 20 है, सेकंड में 19 है, 18 है, तो जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉग्स हैं? 20 plus 24 into D is minus 1. 20 minus 24 minus 4. अब नंबर ऑफ लॉग्स माइनस तो हो नहीं सकते. सो n is equal to 25 is not possible. So when n is equal to 16, 16 is equal to A plus 15D. So it is 20 plus 15 minus 1 into D. So 5. So there are 5 logs in the uppermost row. And which is the uppermost row? It is 16th row. कौन सी रो है? 16th रो है. पहले 20 पुट किए, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14 ऐसे करते करते 16th रो में लास्ट कितने हैं? 5 logs are there. So let's come to the next question, the last question of this chapter. We'll be doing one extra question also. See, the statement of the next question is 20th question is, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. देखो एक potato race है, सब ये bucket है. सबसे पहले bucket का distance जो first point है उससे कितना है? 5 मीटर है. फर्स्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है? 5 मीटर. और फिर आगे डिस्टेंसेस कितने कितने हैं? 3 मीटर. जो फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, उसका potatoes is potato basket से the distance is 5 meters and then the distances between different points is 3 meter.
In a potato race, a bucket is placed in starting point which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. Fine. First is at 5-meter distance, then other potatoes are at a distance of 3 meters. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato. A competitor starts from the bucket से start हुई, जो nearest potato है उसको उठाया, picks up the nearest potato, runs back with it and drops it in the bucket. मीन्स रेस में क्या है कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होना है, पहले 5 मीटर गई, पोटैटो उठाया एंड देन 5 मीटर बैक एंड पोटैटो इज पुट इन द बकेट. देन अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट शी गोज टू द सेकेंड पोटैटो. अब सेकेंड पोटैटो कितने डिस्टेंस पे है? 8 मीटर्स डिस्टेंस पे है. देन शी गोज बैक, तो इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 + 8 इज इक्वल टू 16. थर्ड पोटैटो कितने डिस्टेंस पे है? 5 + 3 + 3 11 मीटर डिस्टेंस पे. 11 मीटर डिस्टेंस आने में और 11 मीटर डिस्टेंस वापस जाने में कवर किया. सो व्हाट इज़ द गिवन AP बिकम्स, फर्स्ट टर्म बिकम्स 10 मीटर, 5 का डबल हो गया ना, और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? 16 मीटर, क्योंकि इट विल बी द डबल ऑफ 8. देन थर्ड टर्म विल बी 22, डबल ऑफ 22. डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ा ना, एक बार आने में और दूसरी बार जाने में. सो व्हाट इज़ द गिवन क्वेश्चन? द डिस्टेंस covered to pick up first, second and third potatoes are 2 × 5 is equal to 10, then 2 × 8 is equal to 16, 2 × 11 is equal to 23. So what is A? A is equal to 10, D is 16 minus 10 is equal to 16. How many terms are there? We are given that in all there are 10 terms given. So we are given n is equal to 10, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. We have to find how much total distance the competitor has to run. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 10 by 2 into 2 into 10 plus 9 into 6, 5 into 20 plus 54, 5 into 74 is equal to 370. So what is the total distance covered? It is 370 meters. Now one more extra question we are doing. Basically it is a question of your exercise 5.4. It is which term of the AP 121, 117, 113 and so on which term of the AP 121, 117, 113 and so on is the first negative term? मतलब देखो ये AP क्या है? डिक्रीजिंग AP है. टर्म्स क्या होती जा रही हैं? डिक्रीज होती जा रही हैं. वैल्यूज़ क्या होती जा रही हैं? डिक्रीज होती जा रही हैं. इसका मतलब क्या है कि आगे जाके वैल्यूज़ विल बिकम नेगेटिव. क्वेश्चन ये है कि कौन सी टर्म जो है इस AP की फर्स्ट टर्म जो होगी, मतलब फर्स्ट पहली कौन सी ऐसी टर्म होगी जो नेगेटिव होगी, मतलब कौन से प्लेस पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी? 7th प्लेस पे, 8th प्लेस पे. वैल्यूज़ डिक्रीज होती जा रही है ना AP में टर्म्स की. सो वी सपोज दैट लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन AP. व्हाट इज A गिवन? 121. D इज 117 minus 121 इज इक्वल टू -4. हमने कहा है nth टर्म नेगेटिव टर्म है. n इज लेस देन 0. नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं? दे आर लेस देन 0. A plus n minus 1 into D is less than 0. 121 plus n minus 1 into D is -4, less than 0. 121 minus 4n plus 4 is less than 0. 125 is less than 4n. 125 is less than 4n means 4n is greater than 125. ये बात समझ में आई? 3 is less than 5 means 5 is greater than 3. जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहते हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों रिवर्स हुई? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 3 इज़ लेस देन 5. तो अगर हमने उल्टा करके लिखना है तो हम लिखेंगे 5 इज़ ग्रेटर देन 3. 4n इज़ ग्रेटर देन 125. सो n शुड बी ग्रेटर देन 31/4. मतलब 31 से जो नेक्स्ट टर्म आएगी n की वैल्यू जब 31 से ज़्यादा होगी तो वो टर्म क्या होगी? नेगेटिव टर्म होगी. तो 31 से आगे नेक्स्ट पूरी टर्म कौन सी है? 32 है. सो 32nd टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. 32nd टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म.
Okay, you can do extra questions, you can do the questions of exercise 5.4, and I'll give you few extra questions also. Thank you.